Welcome to module 4 of airport planning and design. Today we are going to study about the airport lighting and marking. So before this we would like to study about visual aids. So what are visual aids? Why do we need this visual aids? The pilot need visual aids while landing or taking off during all weather and at every time. जब पायलट्स को सारी मार्किंग्स और सिग्नल्स जो हैं या लाइटिंग फैसिलिटीज़ जो हैं एयरपोर्ट पे इंस्टॉल्ड की गई हैं वो अगर उनके पास नहीं रहेंगी तो वो अलाइनमेंट को पहचान नहीं पाएंगे और फिर लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त जो है वो प्रॉब्लम होगी. ठीक है. व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ एट हायर हाइट द एरिया ऑफ एयरफील्ड लुक्स very small like a spot, and hence to guide the pilot in a proper manner the runways, taxiways and other parts of the airport should be properly marked. Okay, visual aids are provided so as to prevent the accident while landing of the aircrafts. Visual aid provide safety to the person and the properties of the airport. It also helps the pilot to locate and identify various features specified by the airport markings. Pilot can have a proper and easy control over the aircraft due to visual aids. So these are the basic points associated with the visual aids. Now the different visual aids which we are going to cover under your syllabus is your airport marking, landing information system and airport lighting. Though in details we will be discussing about the airport marking and airport lighting. So first discuss about the airport lighting. Airport area is marked in a simple manner so that the pilots can easily spot and recognize the various airport elements. जैसे कि वो जब आपका पायलट जो है एयरक्राफ्ट को जब हवा में उड़ा रहा है तो उसको जब वो नीचे देखेगा तो जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही स्मॉल लगेगा. दैट इज़ द रीज़न कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको हम लोग जो है मार्किंग्स के थ्रू जो है बोल्ड मार्किंग्स के थ्रू हम लोग जो है ज़मीन पे बनाते हैं ताकि पायलट्स उसको रिकॉग्नाइज़ कर सके कि कहाँ से लैंडिंग करनी है, कहाँ से टेक ऑफ करनी है, कहाँ टर्मिनल एरिया है, कहाँ पे अप्रोन एरिया है, कहाँ पे हैंगर है. ठीक है. विंड डायरेक्शन किधर इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग ऊपर से विजुअलाइज़ करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी यूज़ टू लैंड ऑन दी रनवे. सो अगर हम लोग एयरपोर्ट मार्किंग की बात करें तो एयरपोर्ट मार्किंग आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स: runway marking, second taxiway marking, third runway and taxiway shoulder marking, apron marking, wind direction indicator and landing direction indicator. Okay, let us first study about the runway marking. So runway marking made on the runway are of following types: runway threshold marking, runway touchdown or landing zone marking, runway edge strip marking, runway center line marking and runway number. So you can see like in this diagram. Okay, this is the runway threshold bar. Okay, this is runway threshold. Okay, this is runway number and designation. This is runway touchdown zone marking. This is runway center line marking. Okay, this line is runway edge line marking. Okay, both are runway edge line marking. So different types of runway markings are shown in this diagram. So let us study one by one. Okay, first is runway center line marking. A white centered strip line is painted on the runway to identify the physical center of the runway, and it provides an alignment guidance for the pilots during landing and takeoff. So as far as you can look into the diagram, यहाँ पे जो center line है, ठीक है, that is इंडिकेटिंग द सेंटर लाइन ऑफ द रनवे. ठीक है, सेंटर लाइन ऑफ द रनवे को इंडिकेट कर रहा है. दिस इज़ वाइट इन कलर. ठीक है, ये वाइट कलर के हैं लाइंस. ठीक है. इट ऑल्सो गाइड द पायलट वाइल ड्यूरिंग द लैंडिंग एंड टेक ऑफ. मार्किंग कंसिस्ट ऑफ अ लाइन ऑफ यूनिफॉर्मली स्पेस्ड स्ट्रिप्स एंड गैप्स. ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रिप्स है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड और इसमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप्स जो है हर स्ट्रिप्स में दिया जाता है. द स्ट्रिप्स आर 120 फीट लॉन्ग. ओके, एंड गैप्स आर 80 फीट लॉन्ग. ओके, सो दिस स्ट्रिप इज 120 feet while the spacing between the two strips is 80 feet long. The minimum width of strips is for the visual runways is 12 inch, while for the non-precision instrument runways this is 18 inch, and for the precision instrument runways this is 36 inch. Okay.
Now let us study about the runway threshold marking. This marking identify to the pilot the beginning of the runway that is safe and available for the landing. So here you can, in this diagram, if you look at this is the runway threshold marking, and this is the threshold bar which indicate the beginning of the runway. Okay, it consists of two series of white strips, each strip 150 feet in length and 5.7 feet in width, separated about the center line of the runway. So if you look at this diagram, okay, there are series of white strips. You can see this, there are series of white strips, okay, on the both sides of the center line of the marking, and each strip is 150 feet in length and having the width of 5.75 feet. Okay, and they both are separated on the two sides of the center line of the runway. On each side of the runway center line, a number of threshold marking strips are placed in accordance with the width of the runway. ठीक है, कितना विड्थ है रनवे का उसके अकॉर्डिंग जो है कितना नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होगा, उसके लिए ICAO ने एक टेबल जो है वो सजेस्ट किया, दैट इज़ फॉर द रनवे विड्थ ऑफ 60 फीट और 18 मीटर द नंबर ऑफ स्ट्रिप शुड बी 4. तो दो इधर रहेंगे, दो इधर रहेंगे. अगर 23 मीटर का है तो 6 स्ट्रिप्स होंगे, तो 3 इधर 3 इधर. ठीक है, 30 मीटर का है तो 8 स्ट्रिप्स, 45 मीटर का तो 12 स्ट्रिप्स और 60 मीटर का तो 16 स्ट्रिप्स. तो बेसिकली दिस आर द स्ट्रिपिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द रनवे थ्रेशोल्ड मार्किंग. Now let us study the touchdown zone marking. These markings are white and consist of groups of 1, 2 and 3 rectangular bars symmetrically arranged in pairs about the central line. Okay, so looking at the diagram, this is indicating the touchdown zone marking. Okay, here you can see there are 3 parallel lines. Here you can see there are 2 parallel lines. There are again 2 parallel lines. These markings are white and consist of groups of 1, 2 and 3 rectangular bars. तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 rectangular bars है, यहाँ पे 2 rectangular bars है. ठीक है, both are arranged symmetrically in pairs about the central line. These markings begin 500 feet from the runway threshold. ठीक है, runway threshold से जो है वो 500 फीट की डिस्टेंस पे स्टार्टिंग हो जाती है इनकी. द बार्स आर 70 फीट लॉन्ग एंड 6 फीट वाइड. तो ये 75 फीट इनकी लेंथ होगी और इनकी जो विड्थ होगी दैट इज़ 6 फीट. ओके, एंड 5 फीट स्पेसेस बिटवीन द बार्स. तो दो बार्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी दैट वुड बी 5 फीट. ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 75 फीट इसका लेंथ होगा. ठीक है, और इस बार का विड्थ जो होगा 6 फीट होगा और जो स्पेसिंग बिटवीन द बार्स होंगी दैट वुड बी 5 फीट. ओके, and are longitudinally spaced at distance of 500 feet along the runway. तो 500 feet से रनवे के स्टार्टिंग से वो 500 फीट पे लोकेटेड होंगी. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रनवे एज स्ट्रिप मार्किंग की. तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ द रनवे एज स्ट्रिप मार्किंग. ठीक है, consist of continuous white line. Here you can see this is continuous white line. ठीक है, along each side of the runway to provide contrast with the surrounding terrain. Okay, the maximum distance between the outer edges of this marking is 200 feet. So the maximum distance between these two outer edges or between these two edges would be around 200 feet. Okay, minimum width of marking is, the width of this marking is, minimum width as recommended by ICAO would be 3 feet. Okay, now let us study about the runway number. The runway number is located here. It indicates the what does the runway number signifies? It signifies the magnetic azimuth, that is taking in the clockwise direction from the magnetic north. Let us say अगर ये north direction में, south direction में है और अगर हमारा रनवे ऐसे लोकेटेड है तो ये बेयरिंग कितना बना रहा है, लेट अस से दिस इज 60 डिग्री. तो 60 डिग्री हमने इसको 1/10 की रीडिंग में लिखेंगे, तो 60 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज़ 06. अगर पैरेलल रनवेज होंगी तो देन वी विल राइट 06 लेफ्ट, 06 राइट. ठीक है, अगर हमें एक ही रनवे में इंडिकेट करना है तो 06 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे,
और उसके साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके, सो this marking is given range of around 10 degree. Okay, so this is your runway number. Okay, now let us study about the taxiway marking. So we have covered the runway marking, in which we have basically covered about the runway center line marking. Okay, runway threshold marking, this is your threshold marking. Touchdown marking, this is your touchdown marking. Okay, again runway edge strip marking, this is your edge strip marking, and runway number. Okay, now let us cover taxiway marking. Okay, so why taxiway is necessary? As we have already covered in the last lecture, taxiways is to maneuver the aircraft from the runway to the apron area. ठीक है, जहाँ पे उसको टर्मिनल पे जाके या किसी पार्टिकुलर गेट पे जहाँ के हम लोग को एयरक्राफ्ट जो है पार करनी होगी रनवे से उतरने के बाद, और जिस रूट से जाएगा दैट पार्टिकुलर रूट इज़ कॉल्ड एज टैक्सीवे. So taxiways are defined as the path that are used for taxiing of aircraft from one part of the airport to another. All the taxiway markings are yellow. Okay, and this is a Viva type question, that all the taxiway markings are yellow in color while the markings on the runway was white in color. Okay, now taxiway center line marking. If you look at the center line of the taxiway, this is a taxiway and this is a runway. Okay, so this is a taxiway. Then if you look at the center line of the marking, the center line of a taxiway is marked with a single strip having width of 6 to 12 inches. The width of this would be 6 to 12 inches. This provide a visual cue to the permit taxiing along the designated path. This central line normally terminates at the runway edge, except in the cases where it is a case of exit taxiway. वो अगर exit taxiway का केस होगा तो वो जो है सेंट्रल लाइन ऑफ रनवे के, जैसे कि इस वाले केस में देख सकते हैं कि दिस इज़ द केस ऑफ exit taxiway, तो ये सेंट्रल लाइन ऑफ दी जो रनवे है उनके साथ जो है ये मर्ज हो जाएंगी. ठीक है, सेंट्रल लाइन ऑफ द रनवे जो है. ठीक है, तो फिर से हम लोग थ्योरी को रेफर करते हैं. द सेंट्रल लाइन ऑफ टैक्सीवे इज मार्क्ड विद अ सिंगल स्ट्रिप हैविंग width of 6 to 12 inches. This provides a visual cue to permit taxiing along the designated path. ठीक है, पायलट को उसका हेल्प मिलेगा, ये जो मार्किंग्स होंगी कि भाई इधर टैक्सीवे लोकेटेड है, वो उसी पाथ को फॉलो अप करेगा. ठीक है, and this central line normally terminates at the runway edge. In the normal case, this is terminating at the runway edge, while in the case of exit taxiway, this would be curved to the center line of the runway. Okay. The second taxiway marking would be runway holding position marking on taxiway. Okay, so you can look at this diagram. Okay, that is holding position markings identifies the location on a taxiway where an aircraft is positioned or supposed to stop while awaiting clearance to proceed onto the runway. Before proceeding onto the runway for takeoff, okay, the aircrafts are made to stop here. Okay, and they wait for the clearance to reach on the runway for the takeoff. Okay, so that position is called as your holding position. Okay, the holding position should be at least 30 meter from the edge of the runway. ठीक है, next taxiway edge marking. This is used to define the edge of the taxiway. ठीक है, taxiway edge marking जो है, this is used to define the edge of the taxiway. Remember they are yellow in color and can be either continuous or dashed. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो taxiway दिया हुआ है, this is continuous in nature, this is dashed. Okay, so continuous taxiway edge marking are used to identify the taxiway from the shoulder, whereas dashed taxiway edge markings are used when aircraft would need to cross the lines. That is when aircraft crosses apron area. तो जब apron area को क्रॉस करना होगा then we will be using the dashed taxiway edge marking. Okay. अब हम लोग बात करते हैं the third, that is runway and taxiway shoulder marking. ठीक है, तो आप इस डायग्राम को अगर रेफ़र करेंगे तो देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे रनवे का शोल्डर्स जो है वो दिया हुआ है. ठीक है, एंड दिस इज टैक्सीवे, टैक्सीवे का भी शोल्डर दिया हुआ है, होल्डिंग एप्रोन का भी शोल्डर दिया हुआ है, एंड दिस इज़ योर ब्लास्ट पैड.
ठीक है। तो रनवे एंड टैक्सीवे शोल्डर मार्किंग की हम लोग बात करें तो इट इज़ डन विद द येलो पेंट। रनवे शोल्डर्स आर मार्क्ड विथ डायगोनल लाइंस ईच हैविंग अ विड्थ ऑफ 0.9 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रनवे शोल्डर है, ठीक है, डायगोनल लाइंस से मार्क्ड हैं जिनकी विड्थ जो है दैट इज़ 0.9 मीटर। ओके। टैक्सीवे एंड होल्डिंग एप्रॉन शोल्डर्स आर मार्क्ड विथ लाइंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ एयरक्राफ्ट। लेट अस से कि अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इधर है या इधर है तो हमारी जो होल्डिंग लाइंस की जो एज होल्डिंग शोल्डर की जो लाइंस होंगी दैट वुड बी मार्क्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फिर लास्ट में हमने ब्लास्ट पैड भी दिया यहाँ पे जिसका जो मार्किंग है दैट इज़ शेवरन पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पैटर्न में जो है, ठीक है, यहाँ पे जो 45 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है, ठीक है। this area is basically made to design to stop the erosion which is occurring due to the jet blast. Okay, now apron marking are painted on apron area to help the pilot in maneuvering the aircraft on the apron, and this marking is done with the yellow paint. what is apron जहाँ पे हम लोगों का जो एयरक्राफ्ट जो है जहाँ पे आके पार्क होता है, ठीक है, टर्मिनल एरिया के पास जो गेट्स बने होते हैं दैट जो पेव्ड एरिया जो होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर एप्रॉन एरिया। द नेक्स्ट मार्किंग दैट इज़ विंड डायरेक्शन इंडिकेटर। विंड डायरेक्शन इंडिकेटर विच मे बी विंड कोन इज़ यूजुअली प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेगमेंटेड सर्कल एयरपोर्ट मार्कर। तो एयरपोर्ट के कोने में, ठीक, एक सेगमेंटेड सर्कल जो है वो बनाते हैं, ठीक है, बीच में देखिए ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, और बीच में एक टी शेप रहता है और साथ में यहाँ पे एक ये कंप्लीट सेटअप रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये विंड डायरेक्शन इंडिकेटर का क्या है काम कि भाई इस विंड की डायरेक्शन को इंडिकेट करना है कि किस डायरेक्शन में जो है विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। तो दिस हेल्प्स द पायलट इन लोकेटिंग द एयरपोर्ट, ओके, एंड द विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, ठीक है, विंड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है जिस डायरेक्शन में हो रहा होगा ये पीछे का जो गुब्बारा है वो उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा होगा, ठीक है। एज पर ICAO द सेगमेंटेड सर्कल शुड हैव एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 30 मीटर। तो ये जो सेगमेंटेड सर्कल है इसका जो डायमीटर है दैट शुड बी 30 मीटर एंड द पैनल विड्थ वेरिंग फ्रॉम 0.9 टू 2.4 मीटर। तो ये जो डिफरेंट पैनल्स हैं, ठीक है, उनकी विड्थ जो है 0.9 टू 2.4 मीटर की होंगी, ये जो पैनल विड्थ है, ठीक है। द विंड डायरेक्शन इंडिकेटर इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रंकेटेड कोन, ठीक है, देख सकती है ट्रंकेटेड कोन है विच इज़ मेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड सिंथेटिक मटेरियल विथ 2 कलर एग्जीक्यूशंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कलर ही यूज़ हो रहे हैं, एक रेड कलर है एक वाइट कलर है। तो अल्टरनेट रेड एंड वाइट कलर जो है वो कलर यूज़ इन कलर्स का जो सिंथेटिक जो हम लोग कॉटन मटेरियल लेते हैं और फिर उसको हम लोग जो है टॉप में जो है बांध देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रंकेटेड कोन, ठीक है। ICAO रिकमेंड्स दैट इट्स लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 3.6 मीटर, ठीक है। तो ये जो है दिस शुड नॉट बी लेस देन 3.6 मीटर वाइल द डायमीटर एट द लार्जर एंड शुड नॉट बी लेस देन 0.9 मीटर। तो ICAO ये जो 2 पैरामीटर्स को सजेस्ट करता है कि भाई ये जो हाइट है दैट शुड नॉट बी और द डायमीटर ऑफ द ट्रंकेटेड कोन शुड नॉट बी less than 0.9 meter while the length should not be less than 3.6 meter. Okay, the last is landing direction indicator. This is in the form of T or tetrahedron. You can see in the diagram this is in the form of T or tetrahedron placed at the center of the segmented circle. तो जहाँ पे wind direction indicator लगा होगा, ठीक है, वहीं पे हम लोग जो है ये landing direction indicator भी लगा होगा, ठीक है, which will indicate the pilot that is the direction of active runway of the airport, ठीक है, वो बताएगा कि भाई कौन सा रनवेज जो है आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं लैंडिंग के लिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एयरपोर्ट लाइटिंग की। द कलर एंड जनरल पैटर्न ऑफ लाइट्स यूज्ड इन द एयरपोर्ट लाइटिंग आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर द सिविल एयरपोर्ट्स। तो सिविल एयरपोर्ट्स के लिए जो है ICAO जो रिकमेंड करती है और ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट्स में हम लोग जो ICAO के रिकमेंडेशंस को फॉलो अप करते हैं, ठीक है। दो देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग सच एज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, टाइप ऑफ नाइट ऑपरेशंस प्लान, type of aircrafts to be used, type of landing surfaces provided, airport classification, power service availability and the weather conditions,
ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स पे जो है हमारा जो इंटेंसिटी या टाइप ऑफ लाइट्स जो हम लोग लाइटिंग फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। Above factors are considered by the designer while preparing the airport lighting plans and specification. Now, we will be dividing the airport lighting under following sections. So, we will be discussing one by one. Let us study through the rotating beacon. Okay, what is rotating beacon? So, you can see in the diagram, this is a rotating beacon. ठीक है, एक यहाँ से बीम्स निकलती हैं, ठीक है। ये वाइट कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, और सिविलियन एयरपोर्ट होगा तो वाइट ग्रीन कलर का लाइट्स निकलेगा। अगर सी एरियाज़ में अगर आपका एयरपोर्ट होगा तो वहाँ पे वाइट और येलो कलर निकलेगा। अगर मिलिट्री एयरपोर्ट्स होंगे, ठीक है, तो वाइट और वाइट ग्रीन होंगे। अगर हेलीपोर्ट्स होंगे तो वाइट येलो या ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो रोटेटिंग बीकन का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ इट इज़ कि ये उनको गाइड करना है कि एक इंडिकेशन मिलेगा कि भाई हाँ इतना हाइट है, ठीक है, और यहाँ पे रनवे जो है आसपास में कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द बीम ऑफ द रोटेटिंग बीकन इज़ विजिबल टू द पायलट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट इंडिकेट्स द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द एयरफील्ड विच इज़ इक्विप्ड फॉर नाइट ऑपरेशंस। बेसिकली दिस इज़ फॉर द नाइट ऑपरेशंस। द बीकन्स आर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द कंट्रोल टावर। तो ये जो कंट्रोल टावर होगा, ठीक है, उसके ऊपर ही लगा रहेगा, ठीक है। They are designed to produce a narrow horizontal beam of high intensity light which is rotated about a vertical axis. तो ये जैसा कि हमने बताया कि ये हम लोग कंट्रोल टावर के ऊपर इसको रखेंगे एंड विच विल बी प्रोड्यूसिंग अ हाई इंटेंसिटी लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो जनरली ये फॉर द सिविलियन एयरपोर्ट्स दे यूज टू प्रोड्यूस 12 फ्लैशेस पर मिनट, वाइल फॉर द मिलिट्री एयरपोर्ट्स दैट वुड बी 18 फ्लैशेस पर मिनट, ठीक है। द फ्लैशेस will with a clear visibility duration of at least 0.15 seconds are arranged in a wide green sequence. Likewise, wide green sequence for the civilian airports and white yellow sequence for the landing in the sea areas, that is for the seaports. Okay, what is code beacon? This is almost same as rotating beacon and it is mounted high enough so that its beam clear all obstruction and it is usually provided with 2 500 watt bulbs with a green color screen. Okay, now बाउंड्री लाइट्स जैसे कि अगर हमारा ये पूरा रनवे का जो एयरपोर्ट का एरिया है तो डिफरेंट जो हमारी पूरी जो फेंस है, ठीक, उस फेंस के अराउंड जो है हमारा जो लाइट्स प्रोवाइडेड है दोज आर कॉल्ड एज बाउंड्री लाइट्स. द इंटायर लैंडिंग एरिया ऑफ द एयरपोर्ट इज आउटलाइंड बाय द बाउंड्री लाइट्स स्पेस्ड अप्रॉक्सीमेटली 90 मीटर apart wherever there is a fence along the boundary of the field. The light should be placed 3 मीटर इनसाइड दी फेंस. तो जहाँ पे हमारा जो फेंस होगा उससे 3 मीटर के अंडर में सारे जो है लाइट्स जो है वो लगेंगे भाई, ठीक है. एंड दे शुड बी माउंटेड अप्रॉक्सीमेटली 0.75 मीटर अबव द ग्राउंड. रेड मार्कर लाइट आर यूज्ड व्हेन बाउंड्री लाइट्स रिप्रेजेंट द हजार्डस अप्रोच. मान लेते हैं कि कोई आसपास जो है ऊंचे जो हैं वो पेड़ हैं उस पार्टिकुलर एरिया के जो एयरपोर्ट जो साइट है उसके बाहर में, ठीक, ऊंचे पेड़ हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे रेड लाइट्स का यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि दैट वुड बी एज ए डेंजर जोन फॉर दी पायलट्स. ओके, अब हम लोग बात करते हैं अप्रोच लाइट्स की. व्हाट इज़ अप्रोच लाइट? While approaching the runway for landing, the approach lights are the only elements for guidance to the pilot. Okay, assuming that the speed of the aircraft is 240 km per hour, the visual range should extend 198 meter ahead of the nearest seen ground object. The pilot generally decides whether to land or not when he is at height of about 60 meter above the runways. ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जब ये 60 मीटर की हाइट पे होगा तब वो डिसाइड करेगा भाई कि हमको लैंड करना है कि नहीं लैंड करना है. ठीक है, उसको सारे जो एयरपोर्ट मार्किंग्स है उसको क्लियरली विजिबल है कि नहीं विजिबल है, उसके हिसाब से फिर वो अपना डिसीजन लेता है. ठीक है, एंड आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम द ATC ही डिसाइड्स टू लैंड और नॉट. ओके, तो यहाँ पे जो इसका जो एयरक्राफ्ट का कॉकपिट है दैट इज़ बेसिकली मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री. ठीक है, तो ये जो रनवे से है वो 15 डिग्री का जो कॉकपिट कट ऑफ एंगल बनाता है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमम कोन ऑफ विज़न. ठीक है, तो इतना एरिया उसको जो है वो दिखना चाहिए. ठीक है,
तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो है अगर 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है देन इट शुड बी 198 मीटर जो है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा नियरेस्ट तो उससे 198 मीटर तक का डिस्टेंस जो है उसको विजिबल होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। Assuming that the cockpit cutoff angle is 15 degree below the horizontal and 180 to 200 meter approach light should be visible to the pilot before pilot transmits from instrument to visual aids, ठीक है। पहले क्या था कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटीज़ को जो एयरक्राफ्ट में जो आपकी इंस्टॉल्ड थी उसको यूटिलाइजेशन करते हुए जो है अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था, ठीक है। बट जैसे ही वो एयरपोर्ट के पास पहुंचा, जिससे उसने एयरपोर्ट मार्किंग्स को देखा, ठीक है, समझा कि भाई यहाँ पे ये इतने एंगल पे हम लोगों को जो है एयरपोर्ट पार्किंग करनी, जब उसको सेंटर लाइन दिखेगी रनवे की, तब वो पार्किंग के लिए अपना पोजीशन जो मेथड है इंस्ट्रूमेंट से विजुअल एड मेथड्स में वो स्विच कर सकता है, ठीक है। The approach lights must extend approximately 900 मीटर ahead of the runway threshold, okay। थ्रेशोल्ड लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ये डायग्राम देखिए, इससे ज़्यादा काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये नीली वाली जो लाइटें हैं, ठीक है, दिस इज़ योर टैक्सीवे लाइट, ठीक है। दिस आर योर अप्रोच लाइट्स, ये रेड रेड वाली लाइट्स देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर थ्रेशोल्ड लाइट, जैसे इधर से हमारे लिए ये ग्रीन है, ठीक है, तो इधर से हम ये लैंड कर रहे हैं और उधर ही अपोजिट डायरेक्शन में वो रेड होगी, मतलब कि वहाँ पे रनवे जो है एंड हो रहा है। दिस इज़ दी रनवे सेंटर लाइन, यहाँ पे फिर रनवे एंड लाइट होगी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लाइटिंग क्या है? दिस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द पायलट्स डिसीजन टू लैंड और नॉट। फॉर दिस रीज़न द रीज़न नियर द थ्रेशोल्ड इज़ गिवन द स्पेशल लाइट कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल लाइट कंसिडरेशन जो है थ्रेशोल्ड लाइट्स के लिए दी जाती हैं। द थ्रेशोल्ड इज़ आइडेंटिफाइड एट अ लार्ज एयरपोर्ट्स बाय अ कंप्लीट लाइन ऑफ ग्रीन लाइट्स। तो ये थ्रेशोल्ड लाइट बेसिकली ये देखिए कंप्लीट हरी लाइट्स जो हैं, ठीक है, एकदम डार्क हरी लाइट्स जो हैं यहाँ पे बनी हुई हैं अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रनवे। तो ये जो पूरा रनवे विड्थ के अराउंड जो है ये ग्रीन लाइट से पूरा इंडिकेटेड है। दिस इज व्हाट कॉल्ड योर थ्रेशोल्ड लाइट्स, ओके। Threshold light is a direction of landing are green, but in opposite direction as we have discussed this would be red in color, that would be indicating the end of the runway, okay। Now let us focus on the runway lighting, okay। So after crossing the threshold the pilot completes a touchdown and then rolls the aircraft on the runway, ठीक है। थ्रेशोल्ड एरिया को जब वो क्रॉस कर लेगा, ठीक है, फिर जब पायलट जो है जहाँ पे टच करेगा, ठीक है, और उसके बाद टच करते हुए जब ये रनवे पे रोल आउट करेगा, ठीक है, उसकी लाइटिंग के बारे में डिस्कशन हो नहीं अब यहाँ पे, ठीक है। तो अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो वाइट लाइट्स हैं, ठीक है, देज आर रनवे एज लाइट्स, ठीक है। ये जो लाइट्स हैं यहाँ पे वाइट दोज आर रनवे सेंटर लाइन लाइट्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे लाइट्स है दिस आर रनवे एंड लाइट्स, ठीक है। ये जो इस तरफ से लाइट्स जो दिखेंगी सेम लाइट्स में पीछे की तरफ, दिस आर रनवे थ्रेशोल्ड लाइट्स, ठीक है। ये साइड रोल बार्स हैं, ठीक है, ऐसे अरेंज्ड रहेंगे ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे एक 500 फीट का बार होगा, एक यहाँ पे 1000 फीट का रोल बार होगा, ठीक है। दिस आर दी रनवे एंड आइडेंटिफायर, यहाँ पे देखिए वाइट कलर के रनवे एंड आइडेंटिफायर जो है, ठीक है। ये टच डाउन जोन लाइट से थ्रेशोल्ड एरिया को पास करते हुए ही अब ये यहाँ ज़मीन पे कहीं टच कर जाएगा, ठीक है। तो फॉर रनवे लाइटिंग अ मोर प्रिसीजन डिज़ाइन कॉमनली नोन एज नैरो गेज पैटर्न इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सली अडॉप्टेड, ठीक है। दिस पैटर्न इज अडॉप्टेड टुवर्ड लाइटिंग ऑफ दी सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रनवे। तो इसका मेन एम क्या था कि भाई जो है सेंट्रल पोजीशन ऑफ द रनवे है, ठीक, उसको लाइट कर दिया जाए ताकि जो है जो पायलट है उसको एक अंदाज़ा मिल जाए कि भाई हमको इस अलाइनमेंट के थ्रू जो है अपना जो है पार्किंग करनी है, ठीक। एज द पायलट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड इट्स अबाउट टू टच द रनवे ही फाइंड्स द सेंट्रल एरिया टू बी क्वाइट डार्क। टू एलिमिनेट दिस ब्लैक होल इफेक्ट, यहाँ पे जो मार्किंग होती है वो सेंटर में होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नैरो गेज पैटर्न, ठीक है। ऑल द लाइट्स ऑन द रनवे एजेस आर एलिवेटेड टाइप। तो जितनी भी रनवे एजेस पे जो लाइट्स हैं दोज आर एलिवेटेड टाइप विच आर हैविंग अ हाइट ऑफ विच आर माउंटेड एट अ हाइट ऑफ ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर, ओके।
एंड दोज इनसाइड द रनवे आर ऑफ फ्लश टाइप की जो लाइट्स की जो हाइट जो माउंटेड होंगी दैट वुड बी लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टैक्सीवे लाइटिंग। टैक्सीवे शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन with the runways. Okay, exit taxiway should be so lighted that the pilot is able to locate the exit 360 to 45 meter ahead of point of the turn off. Okay, taxiway edge lights are elevated blue colored bidirectional lights. हाँ, you have to remember this कि बहुत बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैक्सीवे की लाइट्स जो हैं किस कलर की होती हैं। ठीक है, तो टैक्सीवे लाइट्स आर ब्लू इन कलर। तो ये जो लाइट्स हैं, ठीक है, दिस एज लाइटिंग आर ब्लू इन कलर। ओके, usually located at intervals of not more than 60 meter apart and at a distance of 3 meter from the either edge along the runway. ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये जो एज लाइटिंग है, ये जो सारी ब्लू कलर्स की हैं टैक्सीवे की, दोज आर ब्लू इन कलर एंड विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द रनवे एज। ठीक है, दिस इज़ रनवे एज लाइटिंग। से देख सकते हैं ये रनवे है, दिस इज़ योर टैक्सीवे। ठीक है, टैक्सीवे सेंटर लाइन इज़ ग्रीन इन कलर, रिमेंबर। ठीक है, ये जो सेंटर लाइन होगी जो टैक्सीवे की वो ग्रीन कलर की होगी, जबकि रनवे की जो सेंटर लाइन होगी वो वाइट कलर की होगी। ठीक है, एप्रोन एंड हैंगर लाइटिंग, दिस आर द फ्लड लाइट्स फॉर द कन्वीनियंस इन सर्विसिंग एंड लोडिंग। दिस लाइट सोर्स इज सो माउंटेड दैट इट डज नॉट कॉज ग्लेयर इन द आइज ऑफ द पायलट्स, द सर्विस पर्सनल ऑफ द पैसेंजर। फ्लड लाइट शुड बी माउंटेड एटलीस्ट 12 मीटर अबव द पेमेंट। तो जो एप्रॉन या हैंगर एरिया होगा जहाँ पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स होंगी हमारे एयरक्राफ्ट्स की, ठीक है, वहाँ पे हम लोग फ्लड लाइट्स जो हैं 12 मीटर्स की हाइट पे जो है वो माउंट कर देंगे उसके पेरीफेरी में। ठीक है, लाइटनिंग ऑफ विंड डायरेक्शन इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप में देखिए एक हेलोजन रिफ्लेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट लगी रहेगी। ठीक है, the wind direction indicator is illuminated for the visibility during night and during bad weather conditions, and this illumination is done by the 200 watt angle reflector which is placed 1.8 मीटर above the top of the cone। तो ये यहाँ पे जो हम लोगों ने विंड डायरेक्शन इंडिकेटर के लिए जो कोन यूज़ किया था, इसके 1.8 मीटर ऊपर में एक 260 वाट का हम लोग जो है एंगल रिफ्लेक्टर लगाएंगे। ठीक है, एंड दैट वुड बी प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस लाइटिंग एट एनी पोजीशन ऑफ द कोन। ओके, फिर हम लोग का अलग जो लाइटिंग देखने को मिलता है लास्ट, दैट इज़ दी जो हम लोगों का टी बन रहा था हम लोग का सेगमेंटेड सर्कल में, उसकी लाइटिंग होगी, दैट इज़ लाइटिंग ऑफ लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर। तो इतने तरह की हम लोग जो है एयरपोर्ट लाइटिंग और एयरपोर्ट मार्किंग के बारे में स्टडी करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।